A very good morning to all you students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 11th, and we discuss a new chapter of class 11th accountancy, that is a bank reconciliation statement. So in the last video, we discussed a few important theoretical parts of bank reconciliation statement. In this chapter, firstly, we discussed what is bank reconciliation statement. You know very well, bank reconciliation statement is a statement which reconcile the difference between cash book, bank column and the bank passbook. So firstly, we clarify that this definition, and I also uh, want to clarify the definition of the bank reconciliation statement. So first of all, we discussed what is bank reconciliation statement. As usually we discussed this topic in the previous video, but again, firstly we discussed this topic before the starting any new topic. You can see that in the bank reconciliation statement. Bank reconciliation statement is a statement which reconcile the difference between cash book bank balance and bank passbook. So let's we take the one example on your board. Suppose you are a businessman and also you opened a bank account in any bank. Suppose this is a Punjab National Bank and you opened a bank account in Punjab National Bank account. So it means you are the customer of the Punjab National Bank. So you have an account in Punjab National Bank. So Punjab National Bank give you a passbook which shows the all the transaction made by you with the banks. यानी पासबुक बैंक जो जनरेट करता है अपने कस्टमर को देता है, वो उसमें ये सारी इंफॉर्मेशन पूरी तरह से क्लैरिफाई करता है कि आपने किस डेट को कितना पैसा सबमिट किया है, किस डेट को कितना पैसा विड्रॉ किया है, किस डेट को आपको इंटरेस्ट मिला है, किस डेट को बैंक ने आपके बिहाफ पे कुछ पेमेंट किए. ऑल द इंफॉर्मेशन विच आर रिलेटेड टू योर बैंक अकाउंट should be disclosed by the bank in the special book that is known as the passbook. And as a businessman, ये businessman है, you are a businessman, it is your responsibility also to make a cash book. You know very well, businessman prepares a lots of subsidiary book to determine the difference balances, like he prepares cash book, he prepared purchase book, he prepared sales book, purchase return book, sales return book and general purpose. So that's why every businessman should have prepared the cash book. And you know very well, cash book have a two column, that is a cash column and bank column. Cash book having a cash column shown the balances cash in our bank account. Whereas with the help of cash book bank column, we find out the balances in our bank account. So according to this diagram, we can easily understand bank reconciliation statement is not a statement, but it is a proof regarding your transaction with the bank. So it means businessman prepare cash book and banks prepared passbook, और दोनों में सेम इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है. बिजनेसमैन कैश बुक बनाता है, उसमें बैंक कॉलम प्रिपेयर करता है, और पासबुक तो बैंक के लिए होती है. ये दोनों ही क्या होनी चाहिए, मस्ट बी इक्वल. ये दोनों चीजें बराबर होनी चाहिए. अगर इसका बैलेंस 10,000 रुपीज आ रहा है तो उसका भी बैलेंस 10,000 रुपीज होना चाहिए. यानी बैंक अगर कह रहा है कि आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, तो आपके बैंक बैलेंस में भी कितना आना चाहिए, 10,000 होना चाहिए. अगर आपका कैश बुक कह रहा है कि आपके अकाउंट में 12,000 होना चाहिए, तो आपके पासबुक में 12,000 होना चाहिए. इफ देर इज एनी इनसिमिलरिटीज, अगर इनके बीच में सिमिलरिटीज नहीं पाई जाती, इट मीन्स देयर शुड बी रिकॉन्साइल. हमें यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन करना बहुत जरूरी है. वी फाइंड द डिफरेंसेस, कितने अमाउंट के डिफरेंस है, एंड देयर आफ्टर वी फाइंड द कॉजेज ऑफ द डिफरेंसेस. व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिफरेंसेस, आखिर ये डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, इन पे भी हमें फोकस करते रहना चाहिए. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज दैट
कि बैंक रिकॉन्सिलेशन इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉन्साइल द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक बैंक बैलेंस एंड बैंक पासबुक. As well as we discussed in the last video, a lots of reason of differences between the cash book and passbook. And in the last video, we also explained a different types of the causes. So first of all, one by one, I will take the example and prepared how these differences affect your cash book and passbook. So you know very well, the first very famous difference is check issued but not presented for payment. Suppose it is the first situation, check issued but not presented for payments. It means आपने चेक इशू किया लेकिन वो पेमेंट्स के लिए प्रेजेंट नहीं हुआ. तो यू कैन फाइंड दैट कि अगर हमने चेक इशू किया, सपोज आप ऐसे डायग्राम के हेल्प से समझिए, इट इज अ कैश बुक एंड इट इज अ पासबुक. सपोज यू इशू अ चेक, तो आपका कैश बुक का बैलेंस कम हो जाना चाहिए, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट्स, लेकिन वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ पेमेंट्स के लिए, तो पासबुक में तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा. It means your cash book balance will be declined, but this transaction does not affect the passbook balance. So दोनों के balances के बीच में differences आएंगे, yes sir आएंगे. So that's why it is a very famous causes of differences between the cash book and passbook balances. Let's we take the second example. Second causes. The second causes is check deposited but not collected by बैंक. यानी आपने चेक डिपॉजिट किया लेकिन उसे बैंक में अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ. सो इफ यू डिपॉजिट द चेक इन द बैंक बट वो चेक डिपॉजिट नहीं हुआ, तो यू फाइंड दी this type with the help of this diagram. अगर आपने चेक बैंक में जमा किया होगा, सपोज अगर आपको कहीं से चेक मिला और आपने उस चेक को बैंक में जमा कर दिया, सो आपके कैश बैलेंस में क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए था कैश में. बट वो बैंक ने कलेक्ट ही नहीं किया, बट नॉट कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने उसको कलेक्ट नहीं किया, तो आपके पास में कोई डिफरेंस नहीं. सो विद बाय दिस रीजन योर कैश बुक बैलेंस विल बी इंक्रीज and your passbook balance does not affect. So it is also important reason of difference between the cash book and passbook balances. So let's we take the third example. The third example, suppose any amount directly deposited by the customer in your bank account. Amount directly deposited by customer in our bank account. सपोज आपके किसी कस्टमर ने आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसा जमा कर दिया, डायरेक्टली जाके पैसा जमा कर दिया, यानी कि कैश बुक एंड पासबुक, आपका बैंक कस्टमर जो था उसको आपके बैंक अकाउंट के डिटेल्स पता है, कहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है, सब कुछ पता है. यू नो वेरी वेल कि बैंक अकाउंट में कोई भी पैसा जमा कर सकता है, बट विदड्रॉ विदाउट अकाउंट होल्डर के परमिशन के बिना पैसा विदड्रॉ नहीं किया जा सकता, पैसा कोई भी जमा कर सकता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो यहाँ अमाउंट डिपॉजिट कर रहा है कस्टमर, तो सपोज कस्टमर को आपको पैसा देना था, उसने आपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पैसा जमा कर दिया, बट यू हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट इट, सो यू कैन फाइंड इट. It is also a very important causes of difference between the cash book and passbook balance. Let's we take the one more example.
Point number 4, directly payments made by customer, directly payments made by bank on behalf of कस्टमर, मीन्स आप उसके कस्टमर हैं, आपके बिहाफ पे उसने डायरेक्टली पेमेंट कर दिया। अब ये कहोगे ये कैसा पेमेंट होता है? यू नो वेरी वेल, अगर आप बैंक को कहोगे कि बैंक मेरा LIC पे कर दो तो आपके LIC प्रीमियम पे कर देगा, ठीक। अगर आप बैंक से कहोगे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर दे तो वो पे कर देगा। अगर आप उससे कहोगे टेलीफोन बिल पे कर दो तो टेलीफोन बिल पे कर देगा। अगर आप उससे कहोगे कि मेरे बच्चे की स्कूल फीस सबमिट कर दो ऑनलाइन टाइम टू टाइम, स्कूल फीस पे कर देगा। यानी बैंक ऑल्सो परफॉर्म्स अ फंक्शन लाइक अ एजेंसी, जस्ट लाइक अ मीडिएटर। सो बैंक की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक और फंक्शन होता है कि वो कस्टमर के ऑर्डर पे, कस्टमर के रिक्वेस्ट पे वो डिफरेंट मीडिएटर्स पेमेंट करता है। So in this situation you can see that कि बैंक पे डायरेक्टली पेमेंट्स मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर, यानी कस्टमर को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब वो अमाउंट ड्यू होगी वो ऑटोमेटिक क्या करेगा, बैंक उसको पे कर देगा। यानी जैसे LIC की तरफ से इंफॉर्मेशन आई कि प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम ड्यू हो गया है, तो बैंक ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से उस पैसे को कट कर जमा कर देगा। सो इन दिस सिचुएशन यू फाइंड दैट इफ बैंक पे प्रीमियम, तो आपका अमाउंट कम हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पे कर देगा तो माइनस, टेलीफोन बिल पे करेगा तो, स्कूल फीस सबमिट करेगा तो इससे आपके अकाउंट की वैल्यू कम होगी। बट आपको इसकी इंफॉर्मेशन तब तक नहीं मिलती व्हेन, जब तक आप यू गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पासबुक। यानी आप जब तक पासबुक से इंफॉर्मेशन नहीं लोगे, इन सब की इंफॉर्मेशन सेपरेटली आप तक पता तो है कि आप पे करो, बट हाउ मच अमाउंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ चीजें अमाउंट डिटरमाइंड है, जैसे LIC प्रीमियम डिटरमाइंड है, उसमें भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। स्कूल फीस लगभग डिटरमाइंड है, बट इलेक्ट्रिसिटी चार्ज एंड टेलीफोन बिल आपको पता नहीं है कि हर महीने कितना इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आएगा, कितना टेलीफोन बिल आएगा। सो आपका अकाउंट तो उतने वैल्यू से कम हो जाएगा वैल्यू, बट कैश बुक में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो दैट्स वाई इन दिस सिचुएशन यू फाइंड the most appropriate causes of differences between the cash book and passbook balance. Okay, now let's we take the one more example. Example number 5th. Interest collected by bank, you know very well, interest and dividend भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, and dividend. You know very well, हम जैसे लोग हैं, चाहे आप भी हो, सपोज यू आर ओपन अ बैंक अकाउंट इन आवर बैंक, इन एनी बैंक, और आपने कुछ पैसा कहीं इन्वेस्ट भी किया हुआ है। सो यू नो वेरी वेल, जब हम पैसा कहीं इन्वेस्ट करते हैं लाइक स्टॉक एक्सचेंज, लाइक हम किसी कंपनी के शेयर खरीद देते हैं या किसी को लोन दे देते हैं या किसी कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, तो कंपनी गिव एंड द, जो आपसे पैसा लिया है, ही गिव्स यू इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। डिविडेंड कब मिलता है? द प्रॉफिट ऑन शेयर, जब आप शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का तो उस पर आपको जो रिटर्न मिलता है, दैट इज द डिविडेंड। एंड इंटरेस्ट इज अ मॉनेटरी ऑब्लिगेशन पेड बाय द लोन टेकर, यानी जो लोन लेता है आपसे वो आपको इंटरेस्ट देता है। तो जनरली जैसे अगर आपने कोई FD करा के रखी है, आपने कहीं पैसा इंटरेस्ट इन्वेस्ट किया हुआ है, तो आपको इस पे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड मिलता है। और आपने अपना वो पैसा खुद नहीं लेना है, वो आपने अपने बैंक अकाउंट लिंक करा दिया है वहां पे कि अगर उस पर कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा तो वो आपके बैंक अकाउंट में क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके क्रेडिट हो जाए, यानी कि उसमें ऐड हो जाए। सो ये भी एक तरह का प्रोसेस है। यू कैन सी दैट कि सपोज आपको बैंक ने आपकी तरफ से इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट किया, तो इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन तब तक नहीं होगी जब तक कि आप पासबुक की इंफॉर्मेशन ना ले लो। क्यों? बिकॉज ऑफ यू हैव नो इंफॉर्मेशन अबाउट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। So that's why it is also a very important causes of difference between the cash book balance and passbook balance.
Now we will take the one more example. The one more example is very important. That is direct debits made by the bank. Direct debits made by the bank on behalf of the customer. Okay, direct debits. What is direct debits? So first of all, I want to express myself. You know very well, bank charge a different charges from your bank account. बैंक चार्ज अ डिफरेंट चार्जेस फ्रॉम योर बैंक अकाउंट. यानी जब आप बैंक में अकाउंट ओपन करते हो तो यू नो वेरी वेल कि बैंक आपका क्या करता है, कई तरह के चार्जेस आपके अकाउंट से कट करते हैं, कई तरह के चार्जेस आपके अकाउंट से लेते हैं. सो व्हेन अ बैंक चार्जेस अ डिफरेंट बैंक चार्जेस फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, सो इसकी बारे में भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती. जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ कि बैंक किस तरह के चार्जेस आपके अकाउंट से काटते हैं. पहला चार्जेस है एटीएम चार्जेस, दूसरा नेट बैंकिंग चार्जेस, क्रेडिट कार्ड चार्जेस, एंड बैंक आपके के अकाउंट में से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगर आपको मिली है उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं. एंड बैंक ऑल्सो चार्ज different types of the debt is a check collection charges. देखिए बैंक आपसे कई तरह के पैसे आपके अकाउंट से कट कर सकता है. जैसे आपको उसने एटीएम दिया है तो एटीएम का एक सर्टेन लिमिटेशन होती है कि आप एटीएम इतने टाइम से यूज कर सकते हो. अगर आप उससे ज्यादा यूज करते हो तो बैंक आपके अकाउंट से एटीएम चार्जेस भी काट सकता है. नेट बैंकिंग की फैसिलिटी दिया है तो उसकी एक एप्रोप्रिएट अमाउंट चार्ज करता है. क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दिया है तो उसके भी अमाउंट चार्ज करता है. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी तो सब जानते होंगे, बट ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यू नो वेरी वेल, इट इज अ फैसिलिटी गिवन बाय बैंक ऑन अ करंट अकाउंट. करंट अकाउंट में बेसिकली ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है. अकॉर्डिंग टू दिस फैसिलिटी, बैंक गिव द ऑप्शन टू द अकाउंट होल्डर टू विड्रॉ द मनी मोर देन हिट्स द डिपॉजिट मनी. मीन्स सपोज अगर आपके अकाउंट में 10,000 मनी है और इफ यू वांट टू 15,000 रुपीज फ्रॉम द बैंक, तो बैंक आपको ओवरड्रॉ फैसिलिटी दिया है तो आपको 5,000 एक्स्ट्रा देगा. बट उस 5,000 एक्स्ट्रा पे वो इंटरेस्ट या कुछ चार्जेस चार्ज करेगा, दैट इज नोन एज द चार्जेस ऑन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी. सो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी एक तरह की फैसिलिटी है जो बैंक आपको देता है स्पेशली ऑन द करेंट अकाउंट, ताकि कस्टमर जो हैं वो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को इंजॉय कर सके. सर्विसेज दे रहा है तो यू नो वेरी वेल सर्विसेज के साथ साथ वो आपसे उसके कुछ ना कुछ चार्जेस भी चार्ज करेगा. एंड चेक कलेक्शन चार्जेस, अगर आपके एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा चेक्स बैंक में जमा होते हैं, सपोज एक महीने में आप कम से कम 100-150 बार आप चेक बैंक में सबमिट करते हो, तो इन दिस सिचुएशन भी बैंक भी आपसे क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द चेक कलेक्शन चार्जेस चार्ज करता है. तो यू कैन सी दैट बैंक चार्जेस अ डिफरेंट काइंड्स ऑफ द charges from your bank account. That is the ATM charges, net banking charges, credit card charges, overdraft facility and check collection charges, etc. But you have no information. आपको पता तो ये सारे चार्जेस कटेंगे, बट कितने चार्जेस कटेंगे, बट यू हैव नो इन्फॉर्मेशन हाउ मच. सो इन दिस सिचुएशन वी फाइंड a specific differences between the cash book balance and passbook balance. So the first part, the firstly we discussed in this video what is BRS. So bank reconciliation statement is a statement which reconcile the difference between the cash book balance and passbook balance. And we also discussed the different causes of different causes of difference between cash book and passbook balance, like number 1, check issued but not presented for payment. Number 2, check deposited but not yet collected. Number 3, amount directly deposited by customer in our bank account. Number 4, interest and dividend collected by bank. Number 5, direct debits made by the bank on behalf of the customer, and as well as
direct payments made by the bank on behalf of the customer. So now we will move to the next segment of this chapter. So let's we move the next topic. So after identifying the cause of differences, the reconciliation may be done in the following two way. जब हम सारे differences को analyze कर लिए और सारे differences को analyze करने के बाद we find that कि हम reconciliation दो तरीके से कर सकते हैं. Okay, so when we are talking about the BRS, so BRS can be prepared by the two way. The number one, preparation of bank reconciliation statement without adjusting cash book balance. यानी कि हम reconciliation statement prepare करेंगे लेकिन इसमें cash book open नहीं करेंगे without adjusting cash book balance. Okay, and number two, preparation of bank reconciliation statement after adjusting cash book balance. After adjusting cash book balance. Okay, so when we are talking about the bank reconciliation statement, तो bank reconciliation statement कितने तरह से prepare हो सकता है? Bank reconciliation statement prepared by the two way. Number one, preparation of BRS without adjusting cash book balance, and number two, bank preparation of BRS after adjusting cash book balance. So उसमें करते क्या है? First of all, we explain all the things in the simple words. When we are talking about the preparation of the BRS without adjusting the cash book balance, in this situation हम सिर्फ और सिर्फ एक चीज प्रिपेयर करते हैं, यानी इस सिचुएशन में हम सिर्फ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं. We prepared बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. ये बात याद रखिएगा, जब क्वेश्चन में कैश बुक बैलेंस के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो या क्वेश्चन में ये क्लियर ना करे कि आपको BRS आपको कैश बुक बैलेंस लेना है, कैश बुक प्रिपेयर करना है, नहीं प्रिपेयर करना है, तब तक यू प्रिपेयर्ड ओनली अ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. बट जब क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन हो कि यू प्रिपेयर द BRS आफ्टर एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस, सो इस सिचुएशन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू प्रिपेयर, इसमें आप पहले क्या बनाओगे? एडजस्टेड कैश बुक. In this situation, first of all you prepared adjusted cash book, और adjusted cash book से जो आंसर आएगा उसकी हेल्प से आप लोग प्रिपेयर करोगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट. So when we are talking about the bank reconciliation statement, the bank reconciliation statement can be created by the two way. The first one, the without adjusting cash book balance. In this situation we prepared only a bank reconciliation statement, and number two, after adjusting the cash book balance. In this situation, first of all we prepared the adjusted cash book and thereafter we prepared BRS. So first of all we move the preparation of BRS without adjusting cash book balance. यानी हम कैश बुक बैलेंस बिना कंसीडर किए हुए कैसे हम BRS प्रिपेयर करेंगे, हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे. यानी हम BRS कैसे प्रिपेयर करेंगे विदाउट एडजस्टिंग द कैश बुक बैलेंस. सो लेट्स वी डिस्कस इट. Under this approach, the balance as per cash book or the balance as per passbook is taken as a starting item. The debit balance or favorable balance as per the cash book means the balance of deposit held by the bank. This type of bank exists when the deposit made by the firm are not more than its withdrawal. Such a balance will be credit balance or favorable balance as per passbook. यानी सिचुएशन में, यानी कि when we prepared the bank reconciliation statement without adjusting cash book balance, फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड दी बैलेंसेस. हम इसमें बैलेंसेस लेते हैं बिकॉज यू नो वेरी वेल कि यहाँ पे हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक कैश बुक की और पासबुक की बात कर रहे हैं. तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी कैश बुक बैलेंस एंड पासबुक बैलेंस, तो उसको हम थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं. सपोज यू प्रिपेयर्ड अ कैश बुक एज वेल एज बैंक प्रिपेयर्ड अ पासबुक. तो कैश बुक गिव द टू बैलेंसेस. कैश बुक आपको दो बैलेंस देता है. पहला बैलेंस आपको देता है नंबर वन द डेबिट बैलेंस एंड नंबर टू द क्रेडिट बैलेंस.
यानी व्हेन वी प्रिपेयर्ड कैश बुक वी फाइंड द डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। यहाँ में हम कैश बुक के किस कॉलम की बात कर रहे हैं? बैंक कॉलम की बात कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। ओके, एंड व्हाट इज द पासबुक? पासबुक यू नो वेरी वेल, पासबुक तो बैंक को रिलेटेड होता है। पासबुक भी दो तरह का बैलेंस आपको दिखाता है, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आइडेंटिफाई, यू नो वेरी वेल, कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस होता है it is also known as the positive balance और favorable balance। इसे हम positive balance भी कहते हैं, favorable balance भी कहते हैं। and when we are talking about the credit balance of the cash book, इसे हम लोग negative balance भी कहते हैं, that is a minus value। and when we are talking about the passbook, तो passbook का जो debit balance होता है it is a negative balance, that is the unfavorable balances। and cash book का, passbook का जो credit balance होता है it shows the favorable balance of the passbook। So you can see that with the help of this diagram you can see that कि कैश बुक का डेबिट बैलेंस हमेशा किसके बराबर होता है? पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के बराबर होता है। एंड कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस इज इक्वल टू द डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक, so it will match with the credit balance of the passbook। Listen carefully, when cash book shows the debit balance of the cash book, so the passbook shows credit balance of the passbook। and when cash book shows credit balance of the cash book, then passbook shows debit balance as per passbook। on the other hand, when passbook shows debit balance as per passbook, then cash book shows credit balance to the cash book। and when passbook shows credit balance as passbook, then cash book shows the debit balance to the cash book। so अगर हम इसको और समराइज करें कैश बुक और पासबुक के पॉइंट ऑफ व्यू से और इजी करें, तो वी कैन सी दैट कि कैश बुक का जो डेबिट बैलेंस है इज इक्विवेलेंट टू द पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, एंड कैश बुक का जो क्रेडिट बैलेंस है इज इक्विवेलेंट टू द, जो ये पॉजिटिव को शो करता है और ये नेगेटिव को शो करता है। So when we are talking about the favorable balance means the positive balance, that is the debit balance per cash book and credit balance of the passbook। and when we are talking about the unfavorable balance क्या है आपका? the credit balance of the past cash book and debit balance of the passbook। one more thing, you can listen some kind of the word, that is the overdraft। अभी मैंने आपको जस्ट बताया था ओवरड्राफ्ट के बारे में, शायद यहाँ मैं बता दूं आपको ओवरड्राफ्ट के बारे में। ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्या होता है? मैंने क्या क्या बताया? पॉजिटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस, नेगेटिव बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस, अनफेवरेबल बैलेंस। एक बैलेंस और आ गया, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ये ओवरड्राफ्ट बैलेंस कब पता चलेगा सर? ओवरड्राफ्ट बैलेंस मतलब जितना पैसा है नहीं उससे ज्यादा आपने निकाल लिया है। तो जितना पैसा आपके अकाउंट में नहीं उससे जब ज्यादा निकालोगे तो वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? खुद सोचो। यस सर, नेगेटिव होगा। यानी आपके अकाउंट में 1000 है, आपने निकाल लिया 2000 रुपए, तो 1000 आप माइनस में रह रहे हो। इसका मतलब ओवरड्राफ्ट बैलेंस शोज द नेगेटिव बैलेंस। यानी ओवरड्राफ्ट बैलेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? नेगेटिव बैलेंस। सो एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक हम एक कुछ पॉइंट पे क्लियर कर देते हैं कि द डेबिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज इक्विवेलेंट टू द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द पासबुक एंड द क्रेडिट बैलेंस ऑफ द कैश बुक इज इक्विवेलेंट टू द डेबिट बैलेंस ऑफ द पासबुक। Positive balance is also known as the debit balance, cash book, credit balance of the passbook as well as the favorable balance। जिसे हम लोग favorable balance भी कहते हैं। कभी-कभी क्वेश्चन में नेगेटिव, पॉजिटिव, डेबिट, क्रेडिट ना देकर बस सिंपली लिखा होता है फेवरेबल बैलेंस। तो कैश बुक का फेवरेबल क्या है? डेबिट है, और पासबुक का फेवरेबल क्या है? क्रेडिट है। वेयर इज अनफेवरेबल की अगर बात करें तो कैश बुक का क्रेडिट क्या है? अनफेवरेबल है, और पासबुक का डेबिट क्या है? अनफेवरेबल है। कभी-कभी क्वेश्चन, समटाइम्स क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द ओवरड्राफ्ट बैलेंस। सो ओवरड्राफ्ट बैलेंस के केस में हम लोग क्या करते हैं? व्हेन वी टेक द नेगेटिव बैलेंस,
It means overdraw balance. It means the cash book credit balance and passbook debit balance. So today we discussed the definition of the BRS, as well as we discussed the various important causes of differences between the cash book and passbook balance, as well as we discussed the method of preparation of trial balance. There are basically two methods. You can see that the first method, when we prepared a BRS without adjusting cash book balance, and number two, when we prepared a BRS after adjusting cash book balance. So I hope today we study all the topics very easily. So आज के